پلیز گوری آنٹی مجھے کچھ کھانے کو دے دے، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، میں نے اور میرے بھائی نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ گڑیا پنکھ میں کٹورا پکڑے گوری کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ برسات کے موسم میں گڑیا کی مما کا دیہانت ہو گیا تھا۔ گوری بہت غصے سے دروازہ کھولتی ہے اور ایک زور کا تھپڑ گڑیا کے منہ پر مارتی ہے۔ کل تجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا نا، پھر اپنی منحوس شکل لے کر آج کیوں آئی ہے؟ لگتا ہے بھیک مانگنے کی عادت ہو گئی ہے تجھے۔ میرے بھائی کوکو کو بہت بھوک لگی ہے، گوری آنٹی پلیز میرے بھائی کے لیے تھوڑا سا بھوجن دے دے۔ میں یہاں کوئی دھرم شالہ نہیں کھول کر بیٹھی کہ جنگل کے سارے غریب بچوں کو میں نے بھوجن دینا ہے۔ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے دروازے پر مت آنا۔ گوری اپنا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ مما آپ کیوں چھوڑ گئی ہمیں؟ بہت مشکل ہے، آپ کے بنا رہنا بہت مشکل ہے۔ گڑیا روتی ہوئی واپس اڑتی ہے۔ راستے میں پیڑ کی ڈال پر بیٹھے کبوتر اور کالو کفے کو دیکھ کر گڑیا ان دونوں کے پاس جاتی ہے۔ چل یار کبوتر، یہاں سے چلیں، آج کل جنگل کے غریب بھکاری پکشی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں کالو انکل، میرے بھائی کو بہت بھوک لگی ہے، آپ تو میری مما کے دوست تھے، پلیز میری مدد کر دیں۔ چل یار کالو، اس کا بھائی بھوکا ہے، مدد کر دیتے ہیں۔ نانا کبوتر مت کرنا مدد، آج تو ایک بار مدد کرے گا، کل پھر اپنی شکل اٹھا کر تیرے پاس آ جائے گی۔ چل یہاں سے چلیں۔ کبوتر اور کالو کفا بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سب برے ہیں، بہت برے ہیں، مطلبی پکشی بہت برے ہیں۔ اب میں کسی سے بھوجن نہیں مانگوں گی، میں اپنا بھوجن خود کھوج لوں گی۔ ایک بار مما مجھے ندی کے پاس لے گئی تھی، وہاں بہت سے سوکھے دانے تھے، میں ندی کے پاس جا کر دیکھتی ہوں۔ ایسا سوچ کر گڑیا ندی کنارے جاتی ہے۔ وہاں گڑیا کو کچھ سوکھے دانے مل جاتے ہیں۔ گڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور دانا لے کر واپس گھر کی طرف اڑتی ہے۔ اس کا بھائی کوکو گھونسلے میں لیٹا ہوا تھا۔ ان کا گھر جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ گرم ہوائیں گھر کے اندر آ رہی تھیں۔ گڑیا اپنے بھائی کے پاس آتی ہے۔ دونوں مل کر سوکھا دانا کھاتے ہیں۔ گڑیا بہن، ٹوٹے گھر کی دیواروں سے سورج کی گرم ہوائیں گھر کے اندر آ رہی ہیں، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ کوکو بھائی میں کیا کروں، اس ٹوٹے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ رات ہو جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ سے گھر ٹپکنے لگتا ہے۔ دونوں بہن بھائی گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوکو رونے لگتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش ہمارے گھر میں آ رہی ہے، گڑیا بہن اگر ہمارا گھر ٹوٹ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہوگا کوکو بھائی، آپ چنتا مت کریں۔ گڑیا اپنے بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں کوکو سو جاتا ہے، لیکن گڑیا ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہے۔ اگلی صبح بارش رک جاتی ہے۔ کوکو بھائی آپ گھر پر رہیں، میں جا کر بھوجن کھوجتی ہوں۔ گڑیا بھوجن کی کھوج میں گھر سے نکل آتی ہے۔ اسے ایک پیڑ پر بیٹھی بوڑھی فاختہ نظر آتی ہے۔ ماں جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بھوجن کہاں ملے گا؟ بیٹی آپ تو بہت چھوٹی ہو، آپ کے مما پاپا کہاں ہیں؟ میری مما اور پاپا نہیں ہے، بس ایک چھوٹا بھائی ہے گھر پر، اس کے لیے بھوجن کھوجنے نکلی ہوں۔ اچھا بیٹی، تو پھر تم پچھم کی طرف چلی جاؤ، وہاں تمہیں میٹھے پھل کا ایک پیڑ مل جائے گا، میں بھی وہیں سے بھوجن لاتی ہوں۔ گڑیا پچھم کی طرف اڑتی ہے۔ وہ جا رہی تھی کہ اسے ایک طرف سے کسی کی مدد کی پکار سنائی دیتی ہے۔ گڑیا اس طرف جاتی ہے تو وہاں تربوز کی ایک بیل تھی جس پر ایک بڑا پتھر گرا ہوا تھا اور اس کے کچھ تربوز بھی اس پتھر کے نیچے دب گئے تھے۔ چھوٹی پکشی میری مدد کرو، یہ پتھر مجھ پر گر گیا ہے،
अगर किसी ने इसे ना उठाया तो मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, मैं अकेली उठा नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। गुड़िया जैसे ही उस पत्थर को छूती है, पत्थर बहुत हल्का हो जाता है। गुड़िया आसानी से पत्थर उठाकर दूसरी तरफ रख देती है। मैंने बहुत दिनों से भोजन भी नहीं खाया था, फिर मैंने इतनी आसानी से इतना भारी पत्थर कैसे उठा लिया? गुड़िया, तुमने मेरी मदद की, अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरा तरबूज ले सकती हो, आज नहीं बल्कि रोज मैं तुम्हें तरबूज दूंगी। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरा भाई मीठा मीठा तरबूज खाकर बहुत खुश होगा। प्यारी बेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जादुई बेल हो। क्या आप मेरी मम्मा को देख सकती हो? कैसी है मेरी मम्मा और कहाँ है मेरी मम्मा? वो बहुत खुश हैं और आपकी मदद करने उन्होंने मुझे भेजा था। गुड़िया बहुत खुश होती है और तरबूज लेकर अपने घर आती है, लेकिन गुड़िया का टूटा घर गायब हो चुका था और वहाँ एक सुंदर और बड़ा तरबूज का घर था। जैसे ही कौवों को ये बात पता चलती है, वो गुड़िया से उसका घर छीनने आ जाते हैं। निकल इस घर से, अपने भाई को लेकर यहाँ से दफा हो जा, आज से ये घर हमारा है। गौरी कभी गुड़िया के पास बड़ा तरबूज उठाने लगती है, लेकिन तरबूज बहुत भारी होता है। गौरी तरबूज उठा नहीं पाती। कालू जी, ये तरबूज तो बहुत भारी है, इसे उठाने में मेरी मदद करो। दोनों कौवे मिलकर जोर लगाते हैं, लेकिन तरबूज को उठा नहीं पाते। फिर गुड़िया तरबूज को एक ही बार में उठा लेती है। मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों कौवों को इस तरबूज के नीचे कुचल डालूं। भाग जाओ मेरे घर से। कौवे बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर दोनों बहन भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और जग्गू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर समय खेल कूद और शरारत में लगे रहते थे। कुकू जग्गू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वाह, बॉल के साथ खेल रहे हो। क्या मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूं? नहीं, हम दोनों दोस्त खेल रहे हैं। ये लड़कों वाला खेल है, आप जाओ यहाँ से। कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम नहीं खेलते लड़कियों के साथ। तुम जाओ और जाकर अपनी डॉल के बाल बनाओ। गुड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कुकू और जग्गू हंसने लगते हैं। कुकू बेटा, आपकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो और बहन को ऐसे तंग मत किया करो। मम्मा, मैं सारे दिन का थका घर आया हूँ और अब आप शुरू हो गए, मुझे तंग मत करें। कुकू बेटा, आप तो शरारतें करने के साथ बदतमीजी भी करने लगे हो। ये सब कहाँ से सीख रहे हो? उसी जग्गू से मम्मा, और कहाँ से सीखेगा? उसी जग्गू कौवे से ऐसी बदतमीजियाँ सीख रहे हैं कुकू भाई। मेरे दोस्त को बुरा मत बोले गुड़िया बहन, वरना अच्छा नहीं होगा। रानू चिड़िया बच्चों को डांट कर चुप करवा देती है। अगली सुबह सभी छोटे पक्षी स्कूल जाते हैं, लेकिन कुकू और जग्गू रास्ते से ही वापस आ जाते हैं और खेल कूद में लग जाते हैं। कुकू, आज मेरा मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मीठे फल का सुनकर तो कुकू के मुंह में भी पानी आ गया था। कुकू, हम किसी पक्षी से मीठा फल छीन कर खाएं? छीन कर? ऐसे किसी से कुछ छीनना अच्छी बात तो नहीं होती। तुम्हें किसने कहा? हम बच्चे हैं और बच्चे बड़ों से लेकर फल और दाना खाते हैं। चलो मेरे साथ चलो। कुकू और जग्गू दोनों मीठे फल की तलाश में उड़ते हैं। मिठू तोता एक जगह बैठा हुआ था और उसके पास 2 मीठे फल थे। जग्गू मिठू तोते के पास आता है। मिठू अंकल, क्या आपको पता है छोटे मिठू को स्कूल में चोट लग गई, उसके सर से खून निकल रहा है। क्या? कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? उसे तो बुलबुल डॉक्टर के हॉस्पिटल ले गए हैं,
आप भी जल्दी जाएं वहाँ। मिठू तोता जल्दी से वहां से उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाता है। देखो कुकू, मैंने कहा था ना, हमें फल छीनना भी नहीं पड़ेगा। मिठू तोता अंकल खुद ही छोड़ के, अब एक तुम खाओ और एक मैं खा लेता हूँ। दोनों कुकू और जग्गू मजे मजे से मीठे फल खाने लगते हैं। मिठू तोता बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाता है और बुलबुल डॉक्टर से अपने बेटे के बारे में पूछता है। तोते भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी बच्चे को चोट नहीं लगी, आप बेशक स्कूल जाकर पता करवा लो। फिर मिठू तोता जल्दी से स्कूल जाता है। स्कूल जाकर मिठू तोता अपने बेटे छोटे मिठू को देखता है तो उसे तसल्ली होती है। बुलबुल डॉक्टर ने ठीक कहा था, मेरा बेटा ठीक है और पढ़ रहा है। उन दोनों बच्चों ने मेरे साथ शरारत की है। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया के पास जाता है। शरारती बच्चों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रानो बहन, कम से कम आपके बेटे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं माफी चाहती हूँ तोते भैया, वो अभी छोटा है, लेकिन मैं समझाऊंगी उसे। छोटा है तो क्या ऐसे झूठ बोलता फिरेगा? रानो बहन, अपने बेटे को जग्गू से दूर रखो। उन कौवों को तो अकल है नहीं। वैसी ही तरबियत वो अपने बेटे की कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने बेटे को रोकना होगा। रानू चिड़िया बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसके बेटे ने उसके दोस्तों के सामने उसे रुस्वा कर दिया था। पापा पापा, पता है आज मैंने और कुकू ने मिठू अंकल से झूठ बोलकर उनके मीठे फल ले लिए। मिठू तोते को तो एक बार झटका लगा होगा, बेचारा रोता फिर रहा होगा। दोनों बाप बेटा बेशर्मों की तरह हंसे जा रहे थे। मम्मा, बच्चे हैं हम, बच्चे ऐसी शरारतें नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे? कुकू, आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि आज आपने कितनी बड़ी शरारत की है? झूठ बोला, झूठ का साथ दिया और चोरी करके मीठा फल खाया। मैंने तो आपकी हमेशा अच्छी तरबियत ही की है, तो फिर क्यों क्यों ये सब कर रहे हो? फिर अगले दिन भी कुकू जग्गू के साथ खेल कूद में लगा रहता है। दोनों दोस्त आज प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर लाल पहाड़ी से आगे जाएंगे और खुद मीठा फल तोड़ कर लाएंगे। जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा कह रही थी कि फल चोरी करके नहीं खाना। चलो दोस्त, हम खुद जाकर मीठा फल ढूंढ कर खा लेते हैं। फिर दोनों दोस्त लाल पहाड़ी की तरफ उड़ते हैं, लेकिन वो दोनों तो अभी छोटे थे। कुकू और जग्गू जैसे ही पहाड़ की अगली तरफ पहुंचकर मीठे फल के पेड़ के पास बैठते हैं तो वहाँ एक पत्थर के नीचे दोनों का एक एक पाँव आ जाता है। जग्गू और कुकू शोर मचाने लगते हैं। बचाओ 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 बचाओ। दूसरी तरफ बैठे मिठू तोते को कुकू और जग्गू की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से उनके पास आता है। मिठू तोता बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर भारी था। बच्चों, मैं किसी पक्षी को बुला कर लाता हूँ जो मेरी पत्थर हटाने में मदद करे। मुझ अकेले से तो ये पत्थर हट ही नहीं रहा। अंकल, मेरे पापा को बुला लाए, वो इस पत्थर को हटा देंगे, वो बहुत ताकतवर है। मिठू तोता उड़ता है और कालू कौवे के पास पहुंचता है। क्या तुम भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो मिठू तोते? कल जो मजाक मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ किया उसका बदला ले रहे हो? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने वाला नहीं। समय कम था और उस कम अकल कालू को समझाना मुश्किल था, इसलिए तोता वहां से चला जाता है और रानू चिड़िया को जाकर सारी बात बताता है। रानू चिड़िया जल्दी से मिठू तोते के साथ उड़ती है और जाकर देखती है कि उसका बेटा कुकू बेहोश पड़ा था। रानू चिड़िया और मिठू तोता मिलकर वो पत्थर हटाते हैं और दोनों बच्चों को बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर दोनों बच्चों की मरहम पट्टी करती है। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, ये मेरे भाई को क्या हुआ? हौसला रखो मेरी बेटी, आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कुकू को होश आ जाता है। मम्मा, सॉरी, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। मैं आपका हर कहना मानूंगा और जग्गू के साथ भी नहीं खेलूंगा।
رانو چڑیا اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔